سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام سامعین و ناظرین کو یہ جو میلاد والا مہینہ شروع ہوا ہے، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں جو مہینہ ہے، یہ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ یہ مبارک چاند ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس میں مبارک نبی آئے، محبوب نبی، اللہ کے محبوب نبی کی آمد ہوئی۔ بہت سارے اختلافات اور تفرقے ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے، بس خوشی کی بات ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کائنات کا خلقت میں آنا بھی حضور کے صدقے وسیلے سے تھا۔ یہ دنیا قائم ہے آج بھی تو حضور کے صدقے وسیلے سے قائم ہے، اور جب ڈے آف ججمنٹ لگے گا، وہ قیامت کا دن جب بڑا دن لگے گا، اس دن بھی حضور کی عزت کو بلند کیا جائے گا، حضور کی شان کو دکھایا جائے گا۔ حضور سے محبت کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کلیئرلی فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب اور محبت چاہتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ذرا معیار دیکھیں کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کی عزت کو کیسے بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ساعت، ہر مہینہ، ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا عالم ہوگا جس پر درود خود رب تعالیٰ پڑھ رہا ہے۔ انسان تو پڑھے ہی پڑھے، فرشتے تو پڑھے ہی پڑھے، دیگر مخلوقات تو پڑھے ہی پڑھے، سب ٹھیک ہے، لیکن کیا محبوب کی شان ہوگی، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، منفرد ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ کتنی عظمت ہے، کتنی عظمتوں والا وہ نبی ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میری مطالعے سے گزری، کافی لمبی حدیث ہے، مختصر کر کے مفہوم بتا دیتا ہوں۔ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے کلیم ٹھہرے نا، یہ باتیں کرتے تھے، پوچھا یا رب العزت کوئی عرفہ و اعلیٰ کتاب؟ فرمایا ہاں ہاں، میرا ایک نبی آئے گا، اس کو جو کتاب دوں گا وہ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ یا اللہ وہ کون سا نبی؟ وہ میرا سب سے محبوب نبی، اس کی امت بھی اعلیٰ ہوگی۔
वो दूसरी उम्मतों पर गवाह होगी। या रब्बुल इज्जत वो मुझे उम्मत दे दो, नहीं नहीं वो मेरे महबूब की होगी। या रब्बुल इज्जत वो किताब मुझे दे दो, नहीं नहीं वो किताब भी मेरे महबूब के लिए है। आखिर पर अर्ज की कि या रब्बुल इज्जत मुझे उस उम्मत में ही शुमार फरमा लो। कितनी अरफा वाला उम्मत। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत अरफा आला है। कोई भी आपसे रिलेटेड काम हो, कोई भी आपसे रिलेटेड मोहब्बत वाली कुर्ब वाली बात हो, वो अरफा है, वो आला है। नमाज का हुक्म आया, भाई नमाज पढ़ो, फर्ज हो गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़े, हमें तो पता ही नहीं है। फरमाया जैसे तुम मुझे पढ़ते देखते हो, यानी फॉलो करो मुझे। तो इन तफरकों में नहीं पड़ जाना कि हाँ कहां पे नबी की शान बुलंद करनी है, कहां पे नहीं बुलंद करनी। बस एक बात का ख्याल रखना, हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी हैं, मैसेंजर हैं। उनको कभी खुदा नहीं कहना, माज़अल्लाह, कभी खुदा नहीं कहना, कभी खुदा नहीं मानना। बाकी उसके अलावा हजूर की मोहब्बत में जो दिल आए उनको मानो कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अरफा व आला हैं, ये बेहतरीन हैं, आपकी इज्जत को बुलंद किया जाए। कुरान से, हदीस से बहुत सारी रवायात मिलती हैं। क्या आलम होगा कि क़यामत बर्पा हो गई हो, हर उम्मत अपने अपने नबी की तरफ भाग रही हो, अपने अपने नबी को अप्रोच कर रही हो कि भाई ये इतना सख्त दिन है, हमारी सिफारिश फरमाएं, कुछ थोड़ी सहूलत हो जाए, ये अल्लाह का गजब ठंडा हो जाए। हर नबी कहेगा कि नहीं नहीं मैं इस दिन के लिए नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाए हाँ हाँ मैं ही इस दिन के लिए हूं, आ जाओ मैं सबकी सिफारिश करता हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करता हूं। क्या आलम होगा, क्या आलम होगा, कितना बड़ा दिन, अल्लाह का गजब होगा। सूरज सवा नेजे पे ऐसे सर के ऊपर जैसे लगेगा चमक रहा है, जमीन इतनी सख्त ऐसे लगेगी तांबे की है। नफसा नफसी, अफरा तफरी, हर बंदा पसीने में शराबूर होगा। क्या आलम होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना करम किया, इतना करम किया इंसानियत पर, कहीं भी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपने महबूब की बात आई तो फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया, मैंने तुम पर एहसान किया कि मैंने अपना महबूब, अपना नबी तुम में भेज दिया। आए कुर्बान जाए उस नबी पर। ताइफ वालों ने पत्थर मारे, खून रिश्ता रिश्ता आपकी नालायन पाक तक, आपके पांव तक भी चला गया। फरिश्ते आ गए, क्या रहमतुल लिल आलमीन, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए अल्लाह के महबूब नबी, हुक्म फरमाएं तो ये दो पहाड़ आपस में मार दूं, ये सारी बस्ती तबाह हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इनको मेरी बात समझ नहीं आई, पर इन्हीं की औलादों में से लोग होंगे जो दीन के सालार होंगे, इनको बातें समझ आएंगी दीन की। इतना करीम, इतना रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या महबूब, जहां जहां भी मैं रब्बुल आलमीन हूं, जहां जहां भी आलमीन हैं सबका रब हूं मैं, और जहां जहां भी जो जो आलम हैं तो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन है। मैं रब्बुल आलमीन हूं तो रहमतुल लिल आलमीन है। जरा गौर करें, जानवर भी अपनी सिफारिशात, अपनी दरखास्तें लेकर हजूर की बारगाह में आते। पत्थर बेजुबान, कुव्वते गोयाई नहीं है,
ان में जिंदगी नहीं है, पत्थर में जिंदगी नहीं है। कलमा पढ़ रहे हैं प्यारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय, कौन कौन सी बातों की भी तारीफ करूं मैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तारीफ की जाए कम है। अल्लाह के प्यारे नबी की अजमत व शान की क्या हिकमतें हैं, क्या राज हैं उसमें, कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है अपने महबूब के बारे में। अल्लाह जानता है राज व न्याज की बातें। अल्लाह पाक हमें, आपको, हम सब को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये मिलाद वाला महीना है, बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़े, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना पढ़ेंगे वो कम है। ज्यादा से ज्यादा दुरूद की महफिलें सजा के घर में बैठ जाए, बच्चों को भी साथ कहा आ जाओ बेटा दुरूद पाक पढ़ते हैं। घर में चिरागां करें, लाइट लगाएं, को कैंडल लगा लें। एक कैंडल भी इस नियत तो इखलास से जगा लेंगे ना आप कि हाँ भाई ये मेरे आका जी करीम, मेरे नबी का, मेरे रसूल का मिलाद वाला महीना है, उनकी मिलाद विलादत बासादत की खुशी में लगा रहा हूँ, फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर अबू लाहब को वो एक लौंडी आजाद करने का अजर उस उंगली में पानी की शक्ल में मिलता होगा, तो आपको भी कैंडल जलाने पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अजर व सवाब देगा। घर में चिरागा करने पर अल्लाह आपको अजर व सवाब देगा। भूखों को, गरीबों को खाना बांटने पर अल्लाह आपको अजर व सवाब देगा। ये दरूद पाक की तस्बीहां करने पर, दरूद पाक की महफिलें सजा के बैठ जाने पर अल्लाह आपको अजर व सवाब देगा। ये बहुत बड़ा करम है आपके अल्लाह का आप पर कि उसने अपना महबूब आपको नबी की शक्ल में दिया। सोचें, गौर करें, तदब्बुर करें। भाई जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। फिर कौन सी नेकी हमने आलमे अरवाह में की होगी, कौन सा खैर और भलाई वाला काम किया होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में मुसलमान के घर पैदा फरमाया। तो कुदरत रखता था किसी हिंदू के घर पैदा फरमा देता, किसी और ईसाई के घर, किसी यहूदी के घर। हम क्या करते? हम जो बचपन में अपने बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को, वालिदैन को देखते, हम भी वही कुछ करते। उतना ही हमारा इल्म होता, उतनी सोच होती, वही लगे रहते। तो अल्लाह ने एहसान किया ना जी कि आपको मुसलमान पैदा फरमाया, इंसान पैदा फरमाया। अच्छा, कोई जानवर ही बना देता है इस दुनिया में, तो क्या जानवर जिंदगी नहीं जीते? क्या जानवर के अंदर कोई रूह नहीं है? कोई उसका रब ताला का कोई अमर नहीं है उसमें? है। एहसान है आपके रब्बे करीम का आप पर कि उसने आपको इंसान पैदा फरमाया, उसने आपको मुसलमान पैदा फरमाया। उसने मुसलमानों में भी मोहब्बत वालों में, इखलास वालों में, प्यार वालों में, कुर्ब वालों में आपको रखा। चलें, इसकी एक दलील मैं हूं। भाई ये हर वीक हम महफिल से जाके बैठ जाते हैं, आप महफिल में आते हैं ना जी, मोहब्बत वाले हैं तो आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं तो आते हैं, दीन से मोहब्बत है तो आप आते हैं। चले, कुछ लोग पर्सनली मुझसे भी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन क्यों? कोई रिश्तेदारी है, कोई दोस्ती है, कोई कारोबार इकट्ठा है हमारा, भाई इसीलिए मोहब्बत करते हैं ना कि ये एक अल्लाह का बंदा है जी, ये हजरत साहब जो है वो नेक आदमी है जी, ये इनकी जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए आते हैं। तो अल्लाह का बंदा जान के, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी ताल्लुक अल्लाह का है। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जब आप आते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे हैं, आप नेक हैं, आप मुत्तकी हैं, अल्लाह का आप पर करम है। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, खूब कीजिएगा। जैसे मैंने कहा ना जी, ये आपके फायदे की बात है। जहां मैं दूसरी बातें शरीयत की, तरीकत की आपको बताता
समझाता रहता हूँ, तालीमात करता रहता हूँ, ये भी आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। नहीं जी मैं या मेरे बुजुर्ग कभी मिलाद नहीं मनाते थे, तो कोई बात नहीं, आप करें, कह दीजिएगा। ये करने से पहले बेशक दुआ कर लीजिएगा, नियत कर लीजिएगा, या अल्लाह तेरी रजा और खुशी के लिए तेरे महबूब की खुशी मनाने लगा हूं, चलो तब खुश हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना जी, अल्लाह कहता है मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, टूट कर मोहब्बत करो, अपने माल से, अपनी माँ बाप से, अपनी औलाद से, हत्ता के अपनी जानों से भी ज्यादा जब तक तुम मेरे महबूब से मोहब्बत नहीं कर लोगे, ए ईमान वालो तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, तुम मोमिन ही नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी क्या मेयार रख दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो। अच्छा नहीं जी मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूं कि फेयर एनफ, आप बताएं क्या अल्लाह का कोई तसव्वुर, कोई गुमान है आपके ज़हन में कि अल्लाह कैसा है? नहीं है। ला मकाम, कोई मकाम भी नहीं है, कोई चेहरा मोरा, अल्लाह पाक है उससे, अल्लाह पाक है इन चीजों से, तो फिर कैसे मोहब्बत करेंगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब नबी भेज दिया हमारे लिए, सिंबल, एक हस्ती इस दुनिया में भेज दी, फरमाया ये मेरा महबूब है, इससे मोहब्बत करो। या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू मुझसे मोहब्बत करेगा? हाँ हाँ मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत भी करता हूं, तेरी अतात भी करना चाहता हूं, हाँ हाँ मेरे महबूब की अतात करो, मेरी अतात करोगे तुम। अल्लाह मैं तेरे फरमान के मुताबिक जिंदगी जीना चाहता हूं, हाँ हाँ ये मेरे महबूब ने जो दीन तुम्हें दिया है, जो शरीयत तुम्हें दी है, जो सुन्नतें इसने की हैं, जो अमल इसने की हैं, वो तुम भी करो, ये तुम मेरी ही अतात कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह तो चेहरे मोरे से पाक है, लिहाजा अगर आपको मोहब्बत करनी है तो बाबा यही एक रास्ता है कि हजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। हजूर की अतात करो, अल्लाह की अतात होती चली जाएगी। हजूर का पसंदीदा दीन अपनाओ, अमल करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम पर राजी होगा, अल्लाह तुम्हें उसका अजर सवाब देगा, अल्लाह इस दुनिया में भी तुम्हें इज्जत वालों में रखेगा, कब्र में भी तुम्हारा मामला अच्छा होगा, हशर में भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी, हजूर की शफात कुबरा मिलेगी, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम होगा। कैसे होगा? वो करो जो तुमने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा, वो करो जो आपके फरमान हैं, वो करो जो कुरान जिनकी तालीमात फरमाता है। अपने घर में चरागा भी करें, अपने घर में दुरूद पाक की महफिलें भी सजाएं, और अपने घर से खाना जितनी तौफीक है गुरबा को, मसाकीन को, गरीबों को, भूखों को खाना खिलाएं। नेकियों, खैर और भलाई के जो नेकी वाले काम है ना जी, उनकी अगर एक लिस्ट बनाई जाए ना जी, तो इस लिस्ट में, उस नेकोकारी की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा कि भूखे को खाना खिलाना। इंडिया में भी बहुत जरूरत है भूखों को खाना खिलाने की, बहुत सारे गरीब मसाकिन। ये नहीं देखना कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है, नहीं है, वो नहीं बाबा नहीं, ये जितने भी इंसान हैं, ये मेरे और आपके आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर, हजूर के उम्मती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो मुसलमान हैं वो मानने वाले हैं, वो बिलीवर्स हैं। जो हिंदू, सिख, ईसाई हैं वो नॉन बिलीवर हैं, वो भी मानते नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन उम्मती हैं हजूर के। क़यामत तक भी जो आएगा वो उम्मती है। हाँ कलमा पढ़ लेगा, मान लेगा, बिलीवर्स में आ जाएगा, फायदे वालों में, बख्शिश पाने वालों में शामिल हो जाएगा। नहीं मानेगा, इनकारी रहेगा, कुफर पर अड़ा रहेगा, तो जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा।
कोई अजर व सवाब नहीं है उसके लिए। तो इसलिए जब आप किसी भूखे को खाना खिलाएं तो ये सोच के खिलाएं Excuse me. तो ये सोच के नेकोकारी करें कि ये मैं हजूर की मोहब्बत में कर रहा हूं। अच्छा भाई, मैं इंसानों को मैंने तो बहुत खाना खिलाया, मैं खिलाता भी हूँ, तो अब क्या करूं? जाओ वो परिंदों को दाना दुनकर डाल दो। ये आप ही के नबी हैं, परिंदों के नहीं है। जाओ भाई कोई चील कौवों को कोई कोई कीमा, कोई मीट, छोटी छोटी बोटियां करा के वो डाल दो। पानी में जाओ जाओ फिशेस को कोई फीड डाल दो। वहां पे कोई ब्रेड, कोई वो अक्सर सीगल्स और वो मुर्गाबी और इस तरह के जानवर परिंदे होते हैं वहां पे, उनको कोई फूड डाल दो। डक्स होती हैं, उनको कोई फूड डाल दो। अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशी के लिए बस कोई ना कोई अमल जरूर करें, इसमें आपका फायदा है। और अल्लाह पाक हमें अपना कुर्ब अता फरमाए और इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। हजूर की अतात में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हजूर की मोहब्बत में हमारा वक्त गुजरे, दरूद पाक पढ़ते हुए गुजरे। कब्र में भी हजूर की ज़ियारत हो, महशर में भी हजूर की शफात नसीब हो, और जन्नत में भी हजूर का साथ और सोबत नसीब हो। आमीन। ये मेरी दुआ है अपने लिए भी, मेरे अजीज दोस्तों अहबाब सब के लिए, जितने भी तालीमात के लिए आते हैं उनके लिए भी, जो लाइव इसको देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाद में इसको रिकॉर्डिंग की शक्ल में देखेंगे उनके लिए भी यही दुआ है। अल्लाह पाक आपका और मेरा नसीब व मुकद्दर अच्छा फरमाएंगे। हमारी महफिलें भी पाक हों, हमारी संगतें भी पाक हों, हमारी तन्हाइयां भी पाक हों, और हम पाकों के संग उठाए जाएं, पाकों के संग उठाए जाएं। देखें ना जी, नमाज पढ़ते हैं दिन में, कितनी बार अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों वाला रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। कौन से लोग थे वो नबी थे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। तो नबियों वाला रास्ता, भाई नबी को मानता हूं, उसका रास्ता नहीं मानता। नबी को मैं नबी तो मानता हूं पर उसके कहने पे नहीं चलता। तो फिर भाई माना नहीं माना एक बराबर। भाई अल्लाह को तो मानता हूं पर अल्लाह की मैं बात नहीं मानता। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा मानना है ये? फिर नबी को जब नबी मानते हैं तो मोहब्बत करें, अतात करें, फॉलो करें अल्लाह के अहकाम। देखे ना जी, अभी मैंने बताया कि अल्लाह खुद फरमाता है मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। तो फिर पढ़ो भाई, आप भी पढ़ो, कसरत से दुरूद सलाम पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, पढ़ते रहो। जब दिल पसीज जाए, आंखें नम हो जाए और तस्बीह भी मुकम्मल हो जाए तो फिर हुजूर की बारगाह में पेश करो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को सलाम अर्ज करो। आप सवाल फरमाते हैं, आप जवाब भी फरमाते हैं। हाँ, आपकी और मेरी समात जो है वो सुनने से कासर है। यार जितनी सरकार की तारीफ करूं उतनी कम है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल इज्जत, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो तेरा नबी है ना, जिसका नाम तेरे नाम के साथ है, मैं उनके वसीले से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। अल्लाह ने माफ फरमा दिया। पूछा कि आदम, तुझे कैसे पता चला कि ये मेरा महबूब नबी है? तूने कहां से सीखा या सुना कि तू इसका वसीला पेश करे मुझे? हजरत सईदना आदम अलैहिस्सलाम रब ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल इज्जत, मैंने जन्नत में हर दरवाजे पर यह कलमा लिखा देखा, मैंने हर जगह
तेरे महबूब नबी का नाम तेरे नाम के साथ लिखा देखा, मैं उसी वक्त समझ गया था कि यकीनन ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिसका नाम तेरे नाम के साथ आए। तो भाई क्या हमें तौबा नहीं करनी, हमें अल्लाह से माफी नहीं मांगनी अपने बुरे अमलों की, अपने नाकस अमलों की? तो हमें भी माफी चाहिए, तो फिर इसका मतलब हमें भी चाहिए कि हम हजूर का वसीला पेश करें। मैं हजूर से मोहब्बत ही नहीं करता, ताअत ही नहीं करता, पर दुरूद ही पढ़ता, कैसे वसीला पेश करेंगे आप? और हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो ना, गुनाह कर लो, तो क्या करो? ये नहीं कहा मुझसे माफी मांगो, फरमाया मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। क्या अल्लाह चले गए? अब क्या करें? वहां जाकर मुझसे माफी मांगो। अल्लाह फरमा रहा है उनकी सोबत में, उनकी माइयत में, उनकी संगत में, उनके कुर्ब में बैठकर मुझसे माफी मांगो। अच्छा रब ताला तुझसे माफी फिर मांगते हैं, अब क्या होगा? फरमाया मेरे महबूब तुम्हारी सिफारिश फरमाएं, मेरे महबूब तुम्हारी माफी की दरख्वास्त फरमाएं, तुम्हारा साथ दें, फिर तुम मुझे गफूरुर रहीम पाओगे। क्या पैमाना है मोहब्बत का! भाई बात तो गुनाह और सवाब की हो रही है, बंदे और खुदा के दरमियान की हो रही है कि भाई मैं गुनाहगार हूं, या अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है नहीं, मेरे महबूब की बात कर। बात समझ आई है? हजूर की शान दिखाना कितनी बड़ी बात है। अल्लाह फरमाता है मैं ये कायनात ही ना बनाता, ऐ महबूब, अगर आपकी शान दिखाना मकसूद ना होता। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। जैसे मैंने पहले कहा ना, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं कहना, वो खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। खुदारा ये गलती नहीं कभी करना, ये गुनाह नहीं कभी करना, शिरक नहीं करना। वो खुदा नहीं है, वो नबी है, वो रसूल है, अल्लाह के महबूब है, वो पैगंबर है, वो मैसेंजर है। जो भी मोहब्बत का नाम आप दे सकते हैं दे लें, खुदा नहीं कहना। बाकी सब कुछ मोहब्बत में जायज है। जो नीम मुल्ला है ना जी, इनके चक्कर में नहीं फंस जाना। हजूर से मोहब्बत करना, टूट के मोहब्बत करना, फायदा होगा, काम आएगी। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अला या रब्बे ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा, हमें इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। या अल्लाह हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाने की तौफीक अता फरमा, आपकी सुन्नतों को जिंदा करने की, सुन्नतों का एतबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा और इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। या अल्लाह जितनी भी जिंदगी है तेरे पसंदीदा दीन और तेरे महबूब के मुतारिफ कराए हुए दीन पर चलते हुए गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह हमारी गलतियां खताएं माफ फरमा, कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी तौबा कबूल फरमा। हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान और पनाह अता फरमा, अपना फक्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। जितने भी सामाईन और नाजरीन हाजरीन जो भी मेरे साथ हैं, या अल्लाह हाथ उठाए बैठे हैं, सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा दे, सबकी नेक हाजात पूरी फरमा दे, सबकी गलतियां खताएं माफ फरमा दे, सबकी कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ फरमा दे, सबके अल्लाह गुनाह बख्श दे। या अल्लाह कोई आजमाइश में है, कोई बंदिश में है, कोई सख्ती में है, दूर फरमा दे। जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। इंडिया में हमारे भाई हैं अजीमुद्दीन, हम उनके लिए दुआ को हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती
शिफा और सलामती अता फरमा। या अल्लाह जितने भी हाजरीन आमीन कर रहे हैं, इनमें कोई बीमार है, इनकी फैमिलियों में कोई बीमार है, सबको शिफा अता फरमा, शिफाए कुल्ली सेहत कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा, अल्लाह हमें अतात की तौफीक अता फरमा। हमारी महफिलें, हमारी तन्हाइयां पाक फरमा दे, हमारी गुफ्तारो किरदार पाक फरमा दे, हमारी नीयत और इखलास पाक फरमा दे। अल्लाह हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमा, दीन इस्लाम पर हमें जिंदा रखना, कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। या रब्बुल आलमीन, जिस किसी को भी कोई कोर्ट कचहरी की, कोई इमिग्रेशन की मामलात में परेशानी है, अपने खजाना गैब से मदद फरमाते हुए उनको कामयाबियां अता फरमा। जिन्होंने भी आज तक दामे धर्मे कदमे सुखने सलाहियत से, वक्त से, पैसे से, जिस तरह की भी दीन की खिदमत की हुई है, कर रहे हैं, सबकी खिदमत को कबूल फरमाते हुए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा। जितने भी साथी या अल्लाह तेरी और तेरे महबूब की बारगाह की हाजिरी के लिए सफर में हैं, उनका सफर कबूल फरमा। जो सफर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह जो हमारे साथी उमर बाबा, उनकी फैमिली जो उम्रे पे जा रहे हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा फरमा, सफर वसीला जफर फरमा, सफर की तंगियों तकलीफों मुश्किलों परेशानियों से महफूज फरमाना। अपनी और अपने महबूब की बारगाह की बार बार बाअदब हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल फरमा। जो आ चुके, जो आना चाहते हैं, उनके लिए असबाब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सबको अपने घरों में खुशहाली अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा, तस्लीम व रजा अता फरमा। ये जो दुनिया जो अफरा तफरी का, अनारगी का शिकार है, ये तजब्जुब, ये बेचैनी, ये वहशत जो फैली हुई है, अल्लाह अपने करम से ठंडी फरमा दे, करम से ठंडी फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा। जिनका मैं नाम भूल गया, अल्लाह तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू जानने वाला है, सब जानता है। या अल्लाह आलिमुल गैब है, तू सबकी दुआओं को, हाजात को अपने खजाना गैब से पूरी फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की महफिल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मिलाद का महीना बहुत मुबारक हो। हजूर का मिलाद खूब मोहब्बत से मनाएं, कोई गैर शरई हरकत ना करें कि दूसरों को मौका ना मिले कोई ऐसी वैसी बात करने का, लेकिन खूब दिलो जान से खुशियां मनाएं जी। हम मिलाद के लिए फतवा लेने चले जाते हैं जी, मनाएं कि ना मनाएं। अपने बेटे की बेटी की सालगिरह करें, उसका बर्थडे मनाएं, तो फतवा क्यों नहीं लेते? अब जो मोहब्बत होती है वो किसी कैदोबंद की अंदर नहीं रहती। मोहब्बत मोहब्बत है। हाँ अभी मैं म्यूजिक लगा के बैठ जाऊं, कोई और ढोल ढमक्का करूं, नहीं, कोई गैर शरई हरकत नहीं करनी। बस हजूर की नातें पढ़ें, हजूर का नशीद पढ़े, और तलाल बदलो अलैना बड़ी प्यारी नात है। तो इसी तरह हम कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे अल्फाज हैं। तो खूब मोहब्बत करें बस। अल्लाह पाक आपको मुझे हिम्मत ताकत तौफीक दे और जो कर रहे हैं कबूल फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।